Can you grow any crop here, red soil or sandy soil? The answer should be what? What will be your answer? You cannot grow, right? Right? So the question is that then what is the alternative method? Alternative method is we can grow by the alternative method, that is the hydroponics. Hydroponics is also part of agriculture 4.0. So this is a kind of most advanced and innovative way of growing the crops. Why? Because what you can see in the picture with, because this is the matter of food security. Population is increasing, right? Population is increasing tremendously. Then one day will be there will be no food for all. Only few people will get the food and other may have chance to die because of unavailability of food. Okay, so the father of hydroponics is William Frederick Gericke. Okay, so he was the first to discover and talk about the hydroponic system, alternative way of growing the crops at University of California, Berkeley, and he began to popularize the idea that plant can be grown in a solution of nutrient and water. Means there is no requirement of soil. We can grow the crops in only nutrients and water, right? So that's why he was called as the father of hydroponics, and the term hydroponics was also coined by Professor William Gericke, right? Note kar lo. All of you please note down, because this is part of your project and you have to write your project in your own handwriting. Got it? So every point must be noted. Who was the father of, and there will be test at the end of this session, verbal test. Okay, and you have to answer certain questions. So what hydroponics was coined by whom? Professor William Gericke in 1930, and who described the plant can be grown if their root is suspended in water, and water that contains some mineral elements, okay, dissolved mineral elements. So have you heard about the agriculture 4.0, 4.0? आपने मूवी का नाम सुना होगा ना, 2.0, 3.0 ऐसे आती है ना मूवी. सिमिलरली कन्वेंशनल एग्रीकल्चर 1.0, ठीक है ना. ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0, थोड़ा सा और मॉडर्न किया, मशीन डाल दिया, पेस्टिसाइड वगैरह डाल के एग्रीकल्चर 3.0. नाउ दिस इज द इरा ऑफ एग्रीकल्चर 4.0. तो व्हाट डू मीन बाय द एग्रीकल्चर 4.0? means we are utilizing all kind of engineering branches. Got the idea? We are including all type of engineering branches to modernize the agriculture operation, because food is the ultimate requirement of the world, and there should not be limitation of the food. To increase the food productivity by using the technological, what kind of technology we are using in the modern time? Artificial intelligence, Internet of Things, big data, all these are continuously being utilized, and the common name of this system is given as a precision farming or precision agriculture or precision irrigation, right? So this question can be asked, note down. What is the precision farming? Precision farming is the part of agriculture 4.0. Okay, agriculture 4.0 that utilizes technological innovation in the form of sensors where we can use. Sensor is used to detect the temperature, moisture, and without going to the farm, we can utilize the GPS system, you can utilize the satellite system,
and we can take the photograph of the crop. Nowadays, if a scientist want to know within 24 hours what is the total production of rice in the Himachal, so how they can know this? उनको कैसे पता चलेगा बेटा? टेल मी. अगर कोई साइंटिस्ट जानना चाहता है कि हु ज्वाइन, रितिका, कृतांजलि, इसी का, अच्छा, ओके, पार्थ आ गया, ओके. सो पार्थ, you are late. I know. I know. Everyone was sleeping. Because when I said good morning, only one student replied. So we are studying today about the agriculture 4.0, that is the hydroponics. Okay. So I was asking a question. कि suppose आपको पंजाब में बताना है कि कितना टोटल पोटैटो का प्रोडक्शन हो रहा है, तो कौन सा सिस्टम यूज करके बता सकते हो बिना फार्म पे गए? बताओ कौन सा सिस्टम यूज करके बता दोगे बेटा? दैट इज सैटेलाइट. ठीक है, सैटेलाइट. तो दैट विल बी हेल्पफुल इन कैलकुलेटिंग कि व्हाट काइंड ऑफ फूड विल बी अवेलेबल and what amount of food will be available to people, and if the extra amount is there, then we can sell to the other countries. So hydroponics fits perfectly within the frame of agriculture 4. Means whatever you are learning, this is the part of most advanced technique of farming that utilizes every kind of engineering practices. What kind of engineering practices? They are including, tell me, sensors. They are including machines. They are including information technology, right? And they are also using the robots. Sensor for what? Because various things we have to measure, like temperature, moisture, and pH. And why satellite we are using? Tell me, why we are using the satellite? Who will tell me? Who will tell me, beta? Why we are using the satellite in the modern agriculture farming? Who will tell me will get the special award, special certificate of asking the best question or best answer? Kritanjali, tell me, beta. Why we are using the satellite? No, not. We can detect the pest, obviously. You can detect the disease, exactly, you can see. And manually you have to operate, because suppose you have a 800 acre farm, right? So everywhere you cannot run here and there. It will take much days, and you have to track the disease within 1 hour, because if you are not tracking the disease earlier, what will happen? The disease will spread, right? And what will happen if the disease will spread? All the crops will be affected. All the crops will die. That's why we are using the most advanced technology, satellite imaging, to detect the disease. And also satellite is used to know how many farmers are growing, right, crops. तो वो कैसे पता कर सकते हैं कितने फार्मर? तो वो पिक्चर आ जाती है कि कितने फार्मर्स और कितने एकड़ में ग्रो कर रहे हैं, वो भी आ जाती है पिक्चर. तो सब क्रॉप्स की एक लिमिटेड यील्ड होती है, ठीक है ना, कि कोई क्रॉप 1 एकड़ में 40 टन देगी. जैसे पोटैटो है, पोटैटो स्टार्ट्स फ्रॉम 25 टन पर हेक्टेयर. ओके, तो सम वैरायटीज आर 40 ton per hectare. So similarly, you can track from the satellite. So this is the benefit of using the satellite and GPS. And what is the common name of all these technology? Common name of these technologies are
प्रिसीजन में ये प्रॉब्लम नहीं है कि ड्राउट हो रहा है, क्लाइमेट का फर्क पड़ रहा है, आंधी आ गई, तूफान आ गया, ठीक है ना, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, कम है या बहुत पोल्यूशन है, तो खाने पे सीधा असर पड़ता है उसका, बिकॉज सॉइल फर्टाइल नहीं है तो देन प्रॉब्लम होगी, प्रॉपर यील्ड नहीं आएगी। इसमें सॉइल फर्टिलिटी की बात ही नहीं होती है। सॉइल पे जितना आजकल हम खर्च कर रहे हैं उससे आधे खर्च में आपका तो हाइड्रोपोनिक का सेटअप लग जाना है। ट्रैक्टर खरीदते हैं 15 लाख का, 15 लाख में 15 से 20 लाख में 1 एकड़ का पूरा फार्म ही लग जाता है, ठीक है ना। तो वाटर मैनेजमेंट के लिए आप पंपिंग सेट लो, इलेक्ट्रिसिटी लो, ये सारा सिस्टम यूनिफॉर्म हो जाता है। एंड देयर इज 90-75-0 रूल। Who will tell me what is the meaning of 90-75-0? हाँ, 90% saving of water, 75% saving of fertilizer, and 0% use of pesticide. So you have not to spend too much on the fertilizer, too much electricity, too much tractor, machinery, and labor. Everything you can save. You can save, and that's why this is called as the soil-less farming, most advanced farming, which can save your water, which can save your pesticide, which can save your pesticide, and you are getting totally organic products. Okay, so there are different terms. You will be going to learn about the aeroponics, about the aggregate culture, about the circulating system, about the hydroponics, nutriculture, nutrient film technique, part per million, respiration, raw cool, and finally soilless culture. All these terms you might be familiar with some terms, but ultimately, and you have to explain in the end of you'll be able to explain the meaning of the hydroponics. You can describe some advantages and disadvantages, and you will learn the basic requirements of hydroponically grown plants. And tomorrow we'll study about the classification. So today we are not going to study the classification. So what is hydroponics? Hydroponics is a Greek word. Hydro means water, as we know, and ponics means labor. It means in little effort, little labor, with the use of water, we can grow lots of crops. So growing plant with their root in medium other than soil is also called as hydroponics, right? So growing plant with their roots in medium other than soil is also called as hydroponics. And why this is called as soilless culture? Because we are not using any kind of soil, right? And is this the new? What will be your answer? No, this is not a new technology. Hydroponics was documented around 300 years ago. But now because people are facing a lot of food security problems because of increased population and because of lack of jobs also. तो इसका क्या बेनिफिट है आप देख सकते हैं। स्ट्रॉबेरी का प्लांट ये 1970 में इजराइल में लगा था। तो इसकी क्या बेनिफिट है? टेल मी। यू हैव नॉट टू डील विद द लॉट ऑफ मड्स, है ना, जो फ्लडिंग इरिगेशन होती है तो मड बहुत होते हैं, पूरे कपड़े जूते खराब हो जाते हैं। पहले तो वो चीज नहीं है। एंड दे आर फ्री ऑफ अटैक ऑफ माइट्स, इंसेक्ट, फ्लाइज, है ना। आप देखोगे किसी भी फील्ड में बहुत सारे कीड़े लगे रहते हैं, इतने ज्यादा इंसेक्ट होते हैं कि कुछ तो पत्तियां खा जाते हैं, कुछ फल खा जाते हैं। तो मीन्स यू आर स्पॉइलिंग योर 50% क्रॉप्स बिकॉज ऑफ इंसेक्ट एंड पेस्ट. So here you are saving that kind of attacks. Okay, and controlled condition totally, and round the year you can do this agriculture. पूरे साल आप कर सकते हो, ठीक है ना. तो पूरे साल करने का फायदा क्या है? पूरे साल करने का फायदा है यू कैन कॉमर्शियलाइज इट. आप इसको कॉमर्शियलाइज कर सकते हो, ठीक है ना. तो व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आर एसोसिएटेड विद द हाइड्रोपोनिक्स?
Tell me, the first insect and pest attack will not be there because they are not touching the soils. Okay. So soil harboring many fungus, many attacks, insect, pest, flies. तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, इंसेक्ट अटैक होने की प्रॉब्लम नहीं है. नो डॉर्मेंट वीड सीड्स इन द सॉइल. वीड की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, इसलिए बहुत पेस्टिसाइड वगैरह यूज करते हैं. तो यहाँ पे वीड की बिल्कुल प्रॉब्लम, बिल्कुल क्लीन प्रोडक्शन है. एंड प्लांट कैन बी प्लेस्ड क्लोज टुगेदर, इजियर टू हार्वेस्ट. प्लांट अगर पास पास भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रो करते हैं आराम से. एंड इजियर टू हार्वेस्ट, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी है, आप आराम से हार्वेस्टिंग कर सकते हो. What are the other advantages? You can adjust your nutrients anytime, right? Anytime means there are 4 stages of the crops growing. ठीक है ना? कौन कौन से 4 stages हैं? First, will tell me. First stage is from seed. Seed you are growing, and then after getting the true leaves, you are transplanting them into the hydroponic net cup, and then flowering, fruiting and maturing. 3 stages is this, and 1 is the from seed to plants. ठीक है ना? तो सीड से प्लांट प्रोडक्शन कराना, फिर उस प्लांट को थोड़ा मेच्योर हो गया तो उसको ट्रांसफर कहाँ करना? हाइड्रोपोनिक सिस्टम में, नेट कप में ट्रांसफर कर दिया. एंड ट्रांसफर करने के बाद आपने क्या किया? उसका न्यूट्रिएंट्स का लेवल चेंज कर सकते हैं. बिकॉज व्हेन द प्लांट आर ट्रांसप्लांटेड दे मस्ट हैव लो टीडीएस. आई विल एक्सप्लेन द टर्म ऑफ टीडीएस लेटर ऑन, टोटल डिजॉल्व सॉलिड कैसे मेंटेन करते हैं, क्या होता है. तो सेकेंड क्लास में. द फर्स्ट क्लास इज फ्री, हु हैव ज्वाइंड टुडे, बट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास only the paid people will be joining. So this is going to allow for higher quality of yields, right? Despite of limited nutrients, limited fertilizers, limited water use, so they are going to allow high quality yield. And you can grow all these crops where, because of weather condition, because of limited water, because of extreme weather condition, it's very difficult to grow the plants, right? So pH level you can adjust, and you can maintain desirable climate to maximize the production. So when you are writing your project, okay, so then you have to include the complete details of the plant, their nutrients requirement, their environmental condition, their temperature, their pH, okay, and their uses. So, and you will write about the hydroponics at the end. ठीक है ना? तो advantage, disadvantage, you got the idea. Any question is there? Again, I am repeating. You cannot grow the crops in tough condition, and so to deal with such a tough condition, Professor William Gerke coined the term hydroponics in 1930, and they discovered alternative method of growing the plants, where he used a tomato plant to grow into the nutrient condition without soil. So that's why this was popularly called as the soilless farming, and this is the most advanced nature of farming, agriculture 4.0, because 4.0 is the form of modern farming, okay, and because various technological engineering tools, GPS, satellite, sensors, big data and AI, everything is used to increase the yield, to control the pest, to control the disease, and to control the production management. Okay. Right? So this is the most advanced farming, and now hydroponics is connected with that. Completely mechanized farm have been developed in abroad, in some part of India also, and they are the part of food
value chain business, because productivity is conform, environmental is completely controlled. IntelliDose is there to supply the nutrients, to mix the nutrients, to maintain the pH. There is no manual labor is required. Okay, no much skilled person is required. Only you must know, only one person must be skilled that knows every operation of every things about the hydroponics farming. So hydroponics farming job sector, if you'll see what are the job sector, you can join as a farm manager, right? If you have the knowledge of hydroponics. Currently I have a vacancy where 20 lakhs per annum salary is there. If you know the complete operation of the hydroponics, you know about the nutrient management, you know about the disease management. Because there are various retail outlets like Easy Day. Okay, when there is a Easy Day and various retail outlet, then obviously they are selling the vegetables, fresh vegetables, organic vegetables at the different cost, means higher profit margin is there. आप मंडी में चले जाओ तो कल को एक होमवर्क नोट कर लो सारे बच्चों, एक होमवर्क नोट करो, कॉपी पेन सबके पास है। कल आपके आसपास सब्जी मंडी में जाना है, ठीक है ना, या जहां पे भी सब्जियां मिलती वहां पे जाना है, नोट करके आना है कि कौन कौन सी सब्जी वहां पे अवेलेबल थी। कर पाओगे? यस बोलो, सब लोग अपना हाथ हैंड रेज करो, हाँ पर, ठीक है। हाँ, आई एम सेइंग बेटा, यू हैव टू गो एट द वेजिटेबल शॉप्स और नियर बाई मंडी, ठीक है ना, सब्जी मंडी अगर होगी तो जाना, या सब्जी के शॉप पे जाना, मुझे सारी लिस्ट बना के देना है कि इस समय कौन कौन सी सब्जियां अवेलेबल है। नहीं अवेलेबल है, टोटली लिस्ट बनाना है। वो ऑर्गेनिक का पता नहीं चलता ना, उन लोग तो सॉइल से ही लगते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो कुछ लोग आप नहीं, ऐसे नहीं बताना है, जाना है, फोटोग्राफ लेना है, थोड़ा सा देखोगे तो नई नई चीजें भी मिलेंगी। कुछ रिटेल आउटलेट हो तो वहां चले जाओ और कंपेयर करो, तो ये कंपेयर में तुम्हें बिल्कुल पता लग जाएगा कि जो बाहर सब्जी बिक रही है उससे ज्यादा वैरायटी की सब्जियां आपको रिटेल आउटलेट में आ रही हैं। देन यू विल सरप्राइज कि ये कैसे हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? बिकॉज ऑफ सम इनोवेटिव टेक्नोलॉजी कॉल्ड एज द हाइड्रोपोनिक्स। ये छोटा सा काम है, रिटेल आउटलेट से कंपेयर करना है आपको जो मार्केट में सब्जी अवेलेबल है। कर पाओगे? कर पाओगे ना? हाँ ठीक है ना, छोटा सा काम है, करना स्टार्ट करोगे मजा आएगा। तो आप आपस में डिस्कस कर सकते हो, इसको नोट भी कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट वर्क में कि हमने एक सर्वे भी किया था जिसमें आप बात भी कर सकते हो उनसे, नोट डाउन भी कर सकते हो, भाई सब्जी वाले का क्या नाम है, क्या रेट है, कौन कौन सी सब्जी का नाम है ना, अंदर क्या रेट है रिटेल आउटलेट में, उसका सब्जी का नाम और उसका रेट नोट करना, बाहर की सब्जी का नाम और रेट नोट करना है, ठीक है ना, रेट के साथ। तब आपको फर्क आएगा कि जो पोल्यूटेड एरिया से सब्जी आ रही है, सॉइल से आ रही है ना, उसमें और रेट में और ऑर्गेनिक में काफी डिफरेंट है। रिटेल आउटलेट में टोटल आपको हर एक चीज पैकेट पे लिखा हुआ मिलेगा, प्राइस कितनी है, कब प्रोड्यूस हुआ, कितना पैकेजिंग हुई, ऑर्गेनिक है कि नहीं है, ठीक है ना, समझ रहे हो। उसमें सारी कुछ डिजीज फ्री है, सब कुछ मतलब क्वालिटी कंट्रोल का पूरा पैकेजिंग रहेगा, पूरा लिखा रहेगा। जबकि मार्केट में जो हम सब्जी खरीदने जाते हैं उसमें कुछ भी नहीं लिखा रहता है। हम घर पे ले आते हैं तो मैक्सिमम बार क्या होता है कि आधे से ज्यादा सब्जियां सड़ी होती हैं अंदर से, बाहर से तो वो उनका हेल्थ बड़ा अच्छा दिखता है और अंदर में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द पुअर फार्म मैनेजमेंट। तो उसका हमारा एक कोर्स भी चलता है, 6 मंथ का डिप्लोमा कोर्स है हाइड्रोपोनिक्स फार्म मैनेजमेंट का, जिसका अभी 5,000 हमने फीस, ऑफर फीस रखा है, 45,000 उसकी एक्चुअल फीस है। तो वो अपने साथ साथ आप कर सकते हो एंड द जॉब इज एश्योर्ड बिकॉज उसमें 1 वीक की प्रैक्टिकल की भी गारंटी हम दे रहे हैं कि वो कराएंगे आप हैंड ऑन ट्रेनिंग।
तो 30 जून इज द लास्ट डेट। तो जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में या जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो दे कैन ज्वाइन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूचर फार्मिंग? फ्यूचर फार्मिंग मीन्स वी आर नॉट डीलिंग विद सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ द सॉइल लाइक राइज इन टेम्परेचर। जैसे आप देख रहे हो इस टाइम पे अभी आदमी को रहना मुश्किल हो गया है, तो प्लांट्स तो सोचो कैसे रह रहे होंगे, है ना। ह्यूमन बीइंग इज फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। देन थिंक अबाउट द प्लांट्स। So that's why plants are not seasonal if you are talking about in the term of hydroponics, because you can control the environment. So this is a soilless culture and we are using what? You can use this picture, hydroponic deep water culture. What do you mean? There is a nutrient reservoir tank है जिसमें न्यूट्रिएंट भरा हुआ है, प्लांट नेट कप में लगा हुआ है, रूट न्यूट्रिएंट में फ्लोट कर रही है, एंड देयर इज ऑक्सीजन पंप, जैसा कि आपने देखा था हमारे फॉर्म इधर इंडोर फॉर्म में, है ना। ऑक्सीजन पंप से क्या निकलता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से क्या फायदा है? दे आर नॉट गोइंग टू डेवलप एनी डिजीज, और आपका प्लांट हेल्दी कंडीशन में लगातार ग्रो करता है। करेक्ट है? तो यू आर कंजर्विंग द स्पेस, यू आर कंजर्विंग द वाटर, and you are conserving the environment. That's why this soilless culture is much more beneficial, but you must know the technicalities. Okay? तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लिया, मीनिंग ऑफ हाइड्रोपोनिक्स पढ़ लिया, एंड व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रोपोनिक्स। क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट हाइड्रोपोनिक्स की? तो वी नीड नेट कप, वी नीड सीड और प्लांट, and we need hydroponic system, we need the nutrients, ठीक है, and we need the oxygen pump। चलो बताओ क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हाइड्रोपोनिक की, पिक्चर देख के बताओ। टेल मी। हाँ, प्लांट चाहिए, हाँ, कोकोपीट चाहिए, यस, हाँ हाँ, बिल्कुल, हाँ हाँ, प्रॉपर लाइट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। विदाउट लाइट यू कैन नॉट थिंक ऑफ ग्रोइंग द प्लांट्स। ठीक है, तो ये सारा आपने बहुत बढ़िया, पार्थ आपको सर्टिफिकेट मिलेगा स्पेशल आंसर देने का, ठीक है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। तो ये 1970s में इजराइल में ग्रो किया, तो हम लोग कितने पीछे हैं, अभी तो इंडिया में स्टार्ट हुआ है जस्ट, है ना। देयर आर सम रीजन्स इन द इंडिया लाइक मोहाली, चंडीगढ़ एंड दैट गुरुग्राम बेल्ट, दिल्ली NCR, पुणे, महाराष्ट्र इज वेरी रिच इन हाइड्रोपोनिक सिस्टम, बैंगलोर वेरी हाई टेक फार्मिंग इज देयर, राइट। अभी अगर आप देखो तो चंडीगढ़ अमृतसर में सप्लाई कहाँ से हो रही है? बैंगलोर से हो रही है सारे जो हाइड्रोपोनिक क्रॉप्स की है। इवन दे आर सेलिंग टू द US पीपल। और आप जो चिप्स देखते हो मार्केट में, ठीक है ना, चिप्स खाते हो? कितने लोग चिप्स खाते हैं या खाए हुए हैं या पसंद है? रेज योर हैंड। चिप्स कितने लोगों को अच्छा लगता है? कोई ऐसा है जो चिप्स जिसने ना खाई हो? बताओ, बोलो बेटा। चिप्स खाया आपने? कितने लोगों ने खाया? चिप्स सबने खाया होगा मेरे ख्याल से। आलू का चिप्स नहीं खाई? ये होता है ऐसे, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, ऑल दे आर मेड अप ऑफ पोटैटो। दिस इज अ काइंड ऑफ इंडस्ट्री। अगर आप पूछोगे कि वाई वी आर इंटरेस्टेड इन हाइड्रोपोनिक्स, वाई वी शुड बी इंटरेस्टेड इन हाइड्रोपोनिक्स, तो व्हाट विल बी आवर आंसर? आंसर विल बी फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ, हाँ बेटा बताओ। एक एकड़ में आपका 25 लाख से 30 लाख आ जाता है। हाँ,
कुछ अगर जुगाड़ से लगाओगे, ठीक है ना, तो मैक्सिमम 5 लाख में हो जाएगा। मतलब अगर आप खुद से लगोगे, है ना, एंड यू आर नॉट यूजिंग मच हाईटेक टेक्नोलॉजी, नॉट आउटसोर्सिंग, है ना, आउटसोर्स करोगे तो बहुत नेचुरल है कि उसकी कॉस्ट बढ़ती जाती है। आपने सिंपल पाइप यूज किया, आपने, है ना, मैनेज कर लिया, स्टैंड आपने बहुत सस्ता वाला लगा लिया, फिर क्रॉप्स 4-5 तरह के लगाने के लिए आपने 4-5 तरह के जो हाइड्रोपोनिक सेटअप है। हाँ, इंडस्ट्रियल, हाँ, बिजनेस के लिए अगर लगा रहे हो तो 3 एकड़ में आपका 30, 60, 90, 1 करोड़ रुपए करीब मान लो, ठीक है ना। 1 करोड़ आपका लगना ही है, इससे कम आपका नहीं लग पाएगा। हाँ, और 1 एकड़ का मैं बता दूं, वेरी गुड न्यूज इज दैट कि 1 एकड़ में से मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स आपको 50 लाख रुपए की सब्सिडी दे रही है। अगर 1 एकड़ के लाइन में लगा रहे हो, 30 लाख आपका खर्चा आ रहा है हाइड्रोपोनिक्स में, तो उसमें 50% सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। अगर 3 एकड़ लगा रहे हो, 1 करोड़ का खर्चा है, तो गवर्नमेंट आपको 50 लाख सब्सिडी दे रही है। तो इससे अच्छी बात क्या है। और आपका टर्नओवर अराउंड 4 to 5 करोड़ रुपीज हो गई पर ईयर का। हाँ, ठीक है ना। तो दिस इज नॉट इम्पॉसिबल टास्क, यू कैन डू इट। हाँ, देखो मैं कॉस्ट बता देता हूँ। इंटेलीडोज सिस्टम जो होता है, जो आपका जैसे हमने वेइंग किया था ना, तो वो स्टॉक सोल्यूशन, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हम बना के पहले ही डाल देते हैं बड़े बड़े बॉटल्स में या टैंक में। तो उसमें सेंसर बेस पाइप लगा रहता है। अब मान लो न्यूट्रिएंट का लेवल हो गया TDS 900 से 300। अब आपका 10,000 प्लांट लगा हुआ है, तो अब आप मेहनत करोगे तो 2-3 दिन लग जाएगा, है ना, ठीक है ना। तो इंटेलीडोज सिस्टम क्या करता है कि जैसे आपने वेइंग किया था 3 ग्राम ये, 2.5 ग्राम हो, 3 ग्राम हो, है ना, 1.8 ग्राम वो सारा करके आपने कंसंट्रेट सोल्यूशन बना के रखा है। सेंसर ने डिटेक्ट किया कि 900 ppm है आपका इस समय, सॉरी 300 ppm है, जबकि 900 होना चाहिए। तो टू मेंटेन द 600 ppm देयर विल बी कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम, ठीक है ना। वो कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम के थ्रू क्या करेगा, ऑटोमेटिकली दे आर गोइंग टू ऐड एवरीथिंग। तो आप जब, मतलब आपको मोबाइल पे, मान लो आप वेस्ट बंगाल से चंडीगढ़ आ गए, ठीक है ना, तो वो आपके मोबाइल पे डेटा आ रहा है कि 900 हो गया, इंटेलीडोज स्टार्ट हुआ, फिर उसने आधे घंटे के अंदर 300 to 900 कर दिया, ठीक है। TS का डेटा आ गया, आपका TDS का डेटा आ गया। किसी को इंस्ट्रक्शन देना है तो वो दे सकते हो। लाइट का कितना फोटो लक्स है वो भी बता देगा आपको, है ना। हाँ, इंटेलीडोज सिस्टम आपका पूरा CDAC सिस्टम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, तो वो आपको 75 लाख से, हाँ सॉरी 1 लाख से 2 लाख में लगा देता है, ठीक है ना। उसका ज्यादा कॉस्ट नहीं है, 1 लाख के आसपास है। तो 1 लाख में आपका इंटेलीडोज सिस्टम है, वो सारे क्रॉप की मॉनिटरिंग भी करेगा, रेगुलेशन भी करेगा, डेटा भी देगा और आपको अलर्ट भी मैसेज भेजेगा, ठीक है ना। तो व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ हाइड्रोपोनिक्स? टेम्परेचर, perfect temperature should be there, light should be there perfect, water perfect should be there. Which water we are going to use? RO water, right. Oxygen supply must be there in the water, nutrient supply should be there, and coco pit, raw pool, that is called as the physical support to the plants. You have to provide the physical support to the plants, and this is some disadvantage of hydroponic system, that the setting up cost is very high initial investment cost for the commercial farming, and some diseases, if you are allowing everyone to visit your farm, then there may be some attack of the disease which is very difficult to control under the greenhouse condition. So this is also called as the greenhouse condition when you are going for the polyhouse, and this is also called as the protected condition because you are protecting everything, okay. So you know, under the polyhouse condition, what is the benefit? You can control the temperature, you can control the total environment, means
you can produce winter crops in the summer. Okay, so what you can see, flower pollination can be difficult in greenhouse setting where pollinators are absent. तो sometimes आपको ये समस्या आती है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि थोड़े फ्लावर वगैरह लगा देते हो अंदर में ही, देयर विल बी कंटिन्यूअस प्रेजेंस ऑफ बीज, है ना, बीज वगैरह काफी उसमें अंदर में रहती है। तो चलो एक क्विज कर लेते हैं छोटा सा। वेयर प्लांट इज ग्रोन, प्लांट किस चीज में उगाया गया है इसमें, उसका नाम क्या है? यहाँ पे प्लांट किस चीज में उगाया गया है? बताओ बच्चों, हम प्लांट किस चीज में ग्रो कराया गया है? स्क्रीन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अच्छा, वेरी गुड। शुभम, कुछ क्वेश्चन पूछना है बेटा? हेलो शुभम, सुन ला, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि फ्लावरिंग कैसी होगी, है ना? तो फ्लावरिंग तो हो जाएगी, तो सारा सिस्टम वही है, खाली हमने सॉइल ही रिमूव किया है। पहले सीड से प्लांट ग्रो कराया, ठीक है, उसके लिए तो लाइट चाहिए ना, तो कंटिन्यूसली लाइट मेंटेन है हमारा, ठीक। प्लांट थोड़ा बड़ा हुआ तो देयर इज ए फर्स्ट 2 लीव्स, 2 लीव्स आती हैं व्हेन यू आर ग्रोइंग फ्रॉम द सीड्स। अगर सीड से ग्रो कराओगे तो आपको छोटा सा रेडिकल निकलेगा, स्टेम निकलेगा, एंड उसमें से छोटी छोटी लीव्स निकलेगी, इसको बोलते हैं ट्रू लीव्स। और ट्रू लीव्स के बाद वो थोड़ी और एलोंगेट होती है, थोड़ी और बड़ी होती है, थिकनेस बढ़ेगी, पत्तियां थोड़ी और ज्यादा आएंगी। जैसे पत्तियां आएंगी तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगा, उस टाइम पे आप न्यूट्रिएंट जैसे होता है चेंज करोगे, ठीक है। न्यूट्रिएंट चेंज कर लिया तो थोड़ी सी, अब फ्लावरिंग वाले अगर प्लांट हैं, जैसे टोमेटो है, स्ट्रॉबेरी है, फ्लावर्स है, ठीक है ना, तो उसमें ढेर सारे फ्लावर्स लगने शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए मैं कह रहा था कि आपने क्या करना है कि कुछ फ्लावर्स लगा देने अंदर, ठीक है ना, जैसे रोज का प्लांट लगा दिया, है ना, कुछ गेंदे वगैरह का फूल लगा दिया, ठीक है, तो वो आपको बेनिफिट करेगा। कैसे बेनिफिट करेगा? बेनिफिट ये करेगा कि जब जहां पर फ्लावर रहेंगे अगल बगल, आपने गमले में चाहे लगा दो, चाहे किसी बकेट में लगा दो, तो बीज वगैरह वहां पे पॉलिनेटर के रूप में रहेंगे। एंड व्हेन द पॉलिनेटर आर देयर देन दे कैन ग्रो परफेक्टली। क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, प्लांट इसमें किस चीज में ग्रो कराया गया है? ये प्लांट जो दिख रहा है पिक्चर में, पिक्चर दिख रही है सबको? नहीं दिख रही स्क्रीन? हाँ, तो ये पौधा किस चीज में लगा है? व्हाइट कलर का क्या है, उसका नाम क्या है बताइए? कृतिका, कृतांजलि, बोलो बेटा। नहीं, प्लांट का नाम नहीं पूछ रहा हूँ, प्लांट लगा किसमें है? हाँ, नेट कप में लगा है, ऐसे बोलो ना, नेट कप, बस सिंपल आंसर, ठीक है। विच सिस्टम यूजेज बोथ फिश एंड वाटर? व्हाट इज द नेम ऑफ सिस्टम दैट यूजेज both fish and water? Yeah, which hydroponic system uses both fish and water? That is called as aquaponics. Okay, aquaponics. So aquaponics is the best for growing the potato.
Okay, potato crops you can grow, spinach you can grow, kale you can grow, है ना, palak you can grow, lettuce you can grow. There are various variety of lettuce. You can go with the NFT or hydroponic system, and when we will come तो हम ये डेवलप करेंगे सिस्टम एक्वापोनिक्स का, ठीक है ना। तो ये देखो ये कौन सा सिस्टम है, ये समझ रहे हो, पिक्चर देख पा रहे हो। इस हाइड्रोपोनिक सिस्टम में क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट है और क्या देख पा रहे हो, एक थर्माकोल की सीट है, हाँ थर्माकोल की सीट है और उसमें लेटस ग्रो किया है, तो बड़े बड़े रूट डीप कर गए हैं न्यूट्रिएंट्स में, तो उसको उठा के आप देख सकते हो। तो मतलब दिस इज कॉल्ड एज अ डीप वाटर कल्चर, सॉरी डीप वाटर कल्चर, हाँ DWC, ओके DWC में न्यूट्रिएंट इज नॉट मूविंग, लेकिन ऑक्सीजन मैंडेटरी है, तो आपको ऑक्सीजन यहाँ पे देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको DWC को कन्वर्ट कर सकते हो एक्वापोनिक्स में। एक्वापोनिक्स में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिश डालना पड़ेगा। आप इसमें फिश डाल दोगे तो कुछ लोगों को, आप वेस्ट बंगाल में पार्क तुम हो तो तुम वहां देखोगे ना, कुछ लोग बोलते हैं कि ये फिश वाला एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, या फिश वाला पालक है, या फिश वाला फ्लावर है, या फिश वाला, हाँ मछली इसमें रहती है, हाँ इसमें सारे मछली तैरती रहती है, नीचे मछली ग्रो कर रही है, ऊपर जो है क्रॉप ग्रो कर रहा है। इसको कहते हैं एक्वापोनिक्स, एंड दिस इज सोल्ड इन द नेम ऑफ, नहीं व्हीट राइस भी, लेटस भी आप ग्रो कर सकते हो, बहुत अच्छा ग्रो करता है इसमें, है ना, केल, स्पिनच और लेटस की सभी वैरायटी, आइसबर्ग और रोमेन, हाँ सैलेड वाली सारे आइटम्स, है ना, वो सारे आइटम्स इस तरह से ग्रो कर सकते हो। या किसमें, डीप वाटर में, और मछली नहीं है तो डीप वाटर है, मछली डाल दिया तो एक्वापोनिक्स हो गया। फिश एंड वाटर सिस्टम बहुत, यही तो क्वेश्चन था, विच हाइड्रोपोनिक सिस्टम यूजेस बोथ फिश एंड वाटर, द वर्ड इज एक्वापोनिक्स, ठीक है ना। तो एक्वापोनिक सिस्टम बोलते हैं जिसमें फिश वगैरह भी यूज कर सकते हो। तो फिश का वेस्ट, जो फिश का वेस्ट प्रोडक्ट है दैट इज नाइट्रोजनस प्रोडक्ट, तो हमको नाइट्रोजन डालना नहीं पड़ेगा, बाकी डालना पड़ेगा, फॉस्फेट, पोटाश, ये सारा डालना पड़ेगा। तो ये घर में बना सकते हो डीप वाटर कल्चर बकेट से, जिसको मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया हुआ है, एक पेंट का बकेट ले लो, ठीक है, नेट कप आपको मिल जाएगा, अगल बगल आपको नेट कप जो भी एग्रीकल्चर की शॉप होगी वहां जरूर मिल जाएगा। तो 3 इंच का आपको नेट कप ले लेना है, प्लम्बर बुला के छेद करवा लो या खुद ही ब्लेड से काट लो, है ना, सर्किल बना के, कोई मुश्किल काम नहीं है। और इसमें देखो छोटे छोटे जो मार्बल कटर होते हैं ना, छोटे छोटे मार्बल के पीसेस, वो इसमें भर सकते हो, मिक्सिंग विद द कोकोपीट, 50% कोकोपीट, 50% आपका जो मार्बल की कटर्स हैं उनको डाल सकते हो, तो उससे प्लांट का अच्छा मिल जाता है। एंड जब भी प्लांट लगाते हैं तो रूट बाहर निकला होना चाहिए, ऐसे देख रहे हो, रूट बाहर नहीं निकलेगी तो क्या होगा, दे विल नॉट बी सर्वाइव। ये सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा है। आप इस तरह का बकेट डेवलप कर सकते हो, ठीक है ना, बकेट में थर्माकोल डाल के और कई प्लांट लगा सकते हैं, इसमें न्यूट्रिएंट सिर्फ भरा हुआ है, ठीक है, इसमें कोई इनलेट आउटलेट नहीं है। न्यूट्रिएंट जो मैंने दिया है 20 लीटर्स वाला, ठीक है ना, उसको आप डिजॉल्व करके इसमें डाल सकते हो। इस तरह के प्लांट आपके ग्रो कर रहे हैं। डीप वाटर कल्चर वही बकेट वाला सिस्टम है। अंदर कैसे दिखता है वो बता रहा हूँ। ये देखो कप लटका हुआ है न्यूट्रिएंट्स में, रूट डीप है आपके न्यूट्रिएंट्स में, एयर कंप्रेसर चल रहा है, इसमें एयर आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है, तो एक्सपेंडेड क्ले आइटम्स हैं विद द कोकोपीट, इसमें प्लांट लगा हुआ है, तो प्लांट इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग, है ना। तो इस तरह से बकेट में भी आप ग्रो करा सकते हो, इसको कहते हैं डीप वाटर कल्चर। अब फिश डाल दिया तो हो गया काम, ठीक है ना। तो ये भी सिस्टम क्या है, उसी तरह का मॉडिफाइड है कि आपने छोटे छोटे पेंट बकेट आते हैं
1-1 लीटर वाले, उनको लेकर के उसमें रॉक वूल, ग्रेवल्स, कोकोपीट ये सारा भर के प्लांट लगा दिया आपने। एंड प्लांट लगाने के बाद आप न्यूट्रिएंट फिल्ड टैंक में, बकेट में, तो ये सब बेटा आप मार्केट से खरीद के सस्ता कर सकते हो हाइड्रोपोनिक्स को, ठीक है ना। जैसे आपने एनएफटी सिस्टम, डीएफटी सिस्टम अगर नहीं लगाना है तो इस तरह का सिस्टम करके एंड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आप कर दो, ठीक है। तो दैट विल बी मिनिमाइज द कॉस्ट, बट इसको इंटेलीडोज से नहीं कनेक्ट कर सकते, ठीक है ना। फिर मैनुअली ये सारा ऑपरेशन करना पड़ेगा, सस्ता तो हो जाएगा बट ऑपरेशन मैनुअली करना पड़ेगा। व्हाट इज द एनएफटी? एनएफटी वाज डेवलप्ड बाय द डॉक्टर एलन कूपर। किसने डेवलप किया था? डॉक्टर एलन कूपर। तो इन्होंने ही सारा वो आउटलेट, इनलेट, पाइप वाला सिस्टम वो सारा डेवलप किया। तो उन्होंने जो डीप वाटर कल्चर डेवलप किया था, जो फादर ऑफ हाइड्रोपोनिक्स थे, डॉक्टर गेरके, ठीक है। मतलब 30 ईयर्स लग गए लोगों को समझने में। तो हमारे इंडिया के लोगों को कितने साल लगेगा? मोर देन 70 ईयर्स अभी लग जाएगा लोगों को समझने में कि क्या है हाइड्रोपोनिक्स, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं ज़्यादा और नई चीज़ों को सीखने को अवॉइड करते हैं। यंग जनरेशन उल्टा है, यंग जनरेशन नई चीज़ों को लाना चाहती है, पुराने जो लोग हैं वो पुरानी चीज़ों को लाना चाहते हैं। दैट इज ए कॉन्फ्लिक्ट, दैट्स वाई अभी अगर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कोई 25 साल का बच्चा होता है, मान लो पार्थ कल को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो जाता, तो पार्थ अगर तुम प्राइम मिनिस्टर हो जाओगे तो पहला काम क्या करोगे बताओ? टेल मी। मान लो आपको बना दिया गया है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप सोचो और बन न सको, कुछ तो सोच सकते हो आप। अब्दुल कलाम ने सोचा था राष्ट्रपति बनेंगे? कभी नहीं सोचा था, ना तो उसकी तैयारी की थी। वो तो अपना साइंटिस्ट थे, अपना काम कर रहे थे। उनको बहुत अच्छा, कैसे बढ़ाओगे? हाँ, लाइक हाइड्रोपोनिक्स जिसमें आपकी एक्सपर्टाइज है, ऐसे बोलो। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छा। जैसे एग्जांपल दे सकते हो कि हाइड्रोपोनिक्स में फूड सिक्योरिटी होगी, पूरे वर्ल्ड को हम सेल कर सकते हैं, है ना। इसमें थोड़ा सा बजट बढ़ा देंगे, फंड बढ़ा देंगे। हाँ, और हेल्थ सिस्टम पे कम खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि लोग अगर जहर खा के बीमार होके इलाज कराने जा रहे हैं और गवर्नमेंट का 5 लाख रुपया खर्चा हो रहा है, तो वो 5 लाख रुपए हमने दे दिया ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब इसी का बताएगी कि सपोज इसी का टेल मी। हाँ, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए बेटा, आप क्या करोगे?